Okay. So we will start the assignment 12. Now in assignment 12, all the things which we have discussed earlier, there are mixed questions in this assignment, okay, in the previous year. So if you will see that here, you will see that there are questions based on Hopkinson's test, Swinburne's test, these kind of things, okay. So in the last week, I discussed the Hopkinson's test. So let me share the screen. You will see that we will start directly with the questions, okay, because in this week, there is not much theory, okay. There are only questions which are all mixed questions, which if you have understood the concepts you could do it, okay. So let me discuss the Hopkinson's test again, okay. So here if you see, this is the Hopkinson's test. You can see these notes in the last week assignment, okay. So this is also known as back to back test. So what is the objective of this test? The objective of this test is to measure the efficiency of the machine in no load, and then when the efficiency is known in the no load, then you can extend it for the any loading condition also, okay. That is there with the Swinburne's test also. Swinburne's test पे हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था, ठीक है। तो ये सब तुम लोग पिछले वीक का रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो, एंड ऑल्सो यू कैन सी द व्हाट यू से दिस नोट्स, ओके, फॉर योर रेफरेंस। पर अभी यहाँ पे अब मैं हॉपकिंसंस टेस्ट डिस्कस कर रही हूँ। क्यों डिस्कस कर रही हूँ? क्योंकि हमारे ये जो फर्स्ट टू क्वेश्चंस है, दिस इज ऑन हॉपकिंसंस टेस्ट, ओके। So, Shiv Kumar, hello. I was discussing that we will be seeing the what you say this Hopkinson's test. Okay. So if you see in this week, in this 12th last week, this week is only there are mixed questions, okay, from all the each weeks there are mixed questions for this week. So as such there is no theory, so there is no theory left to be discussed. But what I'll discuss is I will discuss these questions. So you will see in this assignment the main topic is efficiency, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमें नो लोड और नो लोडिंग कंडीशन मतलब कुछ मतलब वैल्यूज दे दिए जाते हैं, और फिर हमें पूछते हैं कि एफिशिएंसी निकालना है, ठीक है। सो दैट इज द थिंग, ठीक है। सो नाउ आई विल बी डिस्कसिंग द फर्स्ट क्वेश्चन। सो ये देखो, इन द फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज गिवन। ये बोला है कि द रिजल्ट ऑफ ए हॉपकिंसंस टेस्ट। सो यू लेट अस डिस्कस द हॉपकिंसंस टेस्ट। मैंने लास्ट वीक डिस्कस किया था, पर मैं फिर से डिस्कस कर दे रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो यू सी दिस हॉपकिंसंस टेस्ट बिकॉज वी परफॉर्म दिस हॉपकिंसंस टेस्ट एंड ऑल्सो द स्विनबर्न्स टेस्ट ऑन नो लोड, ठीक है। अब जैसे ही नो लोड का बात आता है तो हमें पता है कि वी कैन नॉट ऑपरेट आवर सीरीज मोटर इन नो लोड, ओके। दिस आई हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लास व्हाई वी कैन नॉट ऑपरेट द सीरीज मोटर इन नो लोड, क्योंकि उसका नो लोड स्पीड इनफाइनाइट हो जाता है, ओके। सो दैट इज व्हाई द सीरीज मोटर हैज टू बी स्टार्टेड ऑन लोड। So you see, because this Hopkinson's test and Swinburne's test we do on what you say no load conditions, so we do it for shunt machine and compound machine. Okay. So you see, this is the motor here. You can see here, right? This pointer. So this is the motor here. This is the generator here. Now motor and generator are mechanically coupled and they are also connected electrically. Okay, back to back. So that is why this test is also known as back to back test. अब क्या हो रहा है? तो जनरेटर का इलेक्ट्रिकल करंट आउटपुट है I1, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल, और ये दिस इज द टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस बोथ द मोटर एंड जनरेटर। सो V इंटू I1 इज द इलेक्ट्रिकल आउटपुट ऑफ जनरेटर, ठीक है। ये हमारा इलेक्ट्रिकल आउटपुट है जनरेटर से। अब मोटर में क्या है? मोटर में देर इज सम करंट विच इज कमिंग थ्रू द जनरेटर ऑल्सो, एंड देर इज करंट विच द टू मशीन्स आर ड्रॉइंग। अब क्योंकि क्या है कि ये दोनों मशीन तो मतलब चल रहा है। अब इसका जनरेटर का इलेक्ट्रिकल जो आउटपुट है, इसका इलेक्ट्रिकल इनपुट है, और जो मोटर का जो मैकेनिकल आउटपुट है वो इसका मैकेनिकल इनपुट है जनरेटर का। बट व्हाट इज हैपनिंग इन दिस प्रोसेस इज कि इस प्रोसेस में अब लॉसेस तो हो रहे हैं ना, मैकेनिकल लॉसेस हो रहे हैं, कुछ कॉपर लॉसेस हो रहे हैं। तो वो लॉसेस को सप्लाई करने के लिए देर इज अ करंट I2 विच इज बीइंग ड्रॉन फ्रॉम दिस टर्मिनल्स, ओके। तो ये करंट I2 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम लोग इस पॉइंट पे KCL लगाएं तो वी विल सी दैट द करंट विच इज गोइंग, द इक्वलेंट करंट विच इज गोइंग इन द मोटर इज I1 प्लस I2। इसीलिए इलेक्ट्रिकल इनपुट जो मोटर का है वो है V इंटू I1 प्लस I2, ठीक है। नॉट ओनली V I1 बट इट इज ऑल्सो हैविंग V इंटू I1 प्लस I2। तो ये है। अब जैसे मैंने बोला कि आउटपुट ऑफ मोटर क्या है, विच इज इक्वल टू इनपुट ऑफ जनरेटर,
ठीक है, क्योंकि जो भी मैकेनिकल आउटपुट है मोटर का, वही तो इनपुट है, मैकेनिकल इनपुट है जनरेटर का। ठीक है। तो अगर हम लोग जनरेटर का एफिशिएंसी निकालते हैं तो वो क्या है, आउटपुट ऑफ जनरेटर बाय इनपुट ऑफ जनरेटर। तो आउटपुट ऑफ जनरेटर कितना है, इलेक्ट्रिकल आउटपुट तो V/I1 है, देखो V/I1। ठीक है। तो अब ये V/I1 है, तो आउटपुट को V/I1 लिख सकते हैं। और इनपुट ऑफ जनरेटर क्या है, इनपुट ऑफ जनरेटर मैकेनिकल इनपुट है, और मैकेनिकल इनपुट क्या है, मोटर का मैकेनिकल आउटपुट। तो इसलिए आउटपुट ऑफ मोटर लिखा है। ठीक है। अब मोटर का एफिशिएंसी क्या है, मोटर का एफिशिएंसी है आउटपुट ऑफ मोटर बाय इनपुट ऑफ मोटर। तो आउटपुट ऑफ मोटर को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं एफिशिएंसी ऑफ मोटर इनटू इनपुट ऑफ मोटर। सो इफ यू सी हियर वी हैव रिप्लेस द आउटपुट ऑफ मोटर बाय दिस एफिशिएंसी ऑफ मोटर इनटू इनपुट ऑफ मोटर। ठीक है। और यहाँ पे मोटर का इनपुट कितना है, मोटर का इनपुट है V/I1 + I2। ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ, इस तरह से इफ वी सी, सो तो यहाँ पे एफिशिएंसी ऑफ जनरेटर और मोटर एफिशिएंसी को भी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जनरेटर एफिशिएंसी इंटू मोटर एफिशिएंसी इज I1/I1 + I2। ठीक है। अब ये जो टोटल लॉसेस जो हैं, ठीक है, सो टोटल लॉस क्या है, टोटल लॉस तो ये जो I2 करंट जो ड्रॉ कर रहे हैं लोग बाहर से, ये दोनों मशीन के जो बाहर से जो I2 करंट आ रहा है, वो टोटल लॉस को ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो V/I2 इज द टोटल लॉस। तो ये देखो टोटल लॉसेस इन मोटर जनरेटर सेट। ठीक है, दिस V/I2। तो अब हमें क्या निकालना है, अब हमें इंडिविजुअल एफिशिएंसी सपोज करो निकालना है मोटर का और जनरेटर का। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को इंडिविजुअल एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका एक मतलब और भी थोड़ा सा मतलब डिटेल डायग्राम है। ठीक है। तो इस डिटेल डायग्राम में मैंने देखो आर्मेचर वाइंडिंग दिखाया है जनरेटर का, फील्ड वाइंडिंग दिखाया है जनरेटर का, फिर इस डिटेल वाइंडिंग में आर्मेचर वाइंडिंग दिखाया है मोटर का, फील्ड वाइंडिंग दिखाया है मोटर का। यहाँ पे भी I2 करंट ऐसे बाहर से आ रहा है, I1 करंट जो इक्वलेंटली जो बाहर जा रहा है, सब समझ रहे हो। तो ये I1 करंट इधर जा रहा है और यहाँ I2 + I1 है, तो ये पहले डायग्राम से ही कॉमन है। ठीक है। इसके अलावा आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग इंक्लूड कर दिया है, वी हैव इंक्लूडेड इन दिस डायग्राम। तो इफ यू सी, तो लेट अस सपोज कि I3 इज द फील्ड करंट ऑफ द जनरेटर। ठीक है। तो शंट जनरेटर में क्या होता है, शंट जनरेटर में फिर आर्मेचर करंट कितना हो जाता है, फील्ड करंट प्लस लाइन करंट। तो I1 + I3 इज द फील्ड करंट प्लस लाइन करंट, दिस बिकम्स द आर्मेचर करंट इन द जनरेटर वाइंडिंग। ठीक है। अब मोटर में क्या है, मोटर में लेट अस सपोज कि फील्ड करंट इज I4। ठीक है। तो फॉर द शंट मोटर व्हाट हैपेंस, फॉर द शंट मोटर द आर्मेचर करंट इज लाइन करंट माइनस फील्ड करंट। तो लाइन करंट यहाँ पे कितना, I2 + I1 माइनस फील्ड करंट I4। तो इस तरह से आर्मेचर करंट मोटर का भी निकल गया शंट मशीन का। ठीक है। Now what we are doing is we are calculating the rotational loss, ठीक है, of each machine। क्योंकि we know कि okay armature, what is the armature copper loss, we know it is I²R loss, field copper loss is also I²R, so these copper losses are known to us, okay, but what is unknown is the rotational loss। So how we will find this, so let us see। ठीक है। So here V/I2 is the overall loss। ठीक है। So if in from the overall loss we take out the armature losses and we take out the field copper loss, then we are only left with the rotational loss of both the machines। ठीक है। तो इसमें क्या किया है, V/I2 is the input which power which is coming to meet the losses, so it is equal to total loss minus the what you say armature loss of the generator। So armature loss of generator is I1 + I3 is the current, so I1 + I3 whole square into Rag, let us suppose the armature resistance is Rag, plus the field current of the what you say generator is I3, so I3 square into RFG, plus field current of the motor is I4 square into RF, plus this what you say, what is this copper loss of the armature of the motor, it is I2 + I1 minus I4 square RAM। तो ये सब KCL लगाने से जो भी करंट्स जिस भी वाइंडिंग में जा रहे हैं, फील्ड वाइंडिंग में, आर्मेचर वाइंडिंग में, वो करंट स्क्वायर इनटू पर्टिकुलर रेजिस्टेंस, ठीक है, फील्ड का या आर्मेचर का। तो वो करके हमने ये टोटल कॉपर लॉस में से ये मतलब टोटल इन लॉसेस में से टोटल कॉपर लॉस निकाल दिया। तो क्या बचा हमें, रोटेशनल लॉस ऑफ बोथ द मशीन्स। ठीक है। बट हम यहाँ पे
PR निकाल, सपोज PR इज द वैल्यू विच यू हैव फाउंड, बट PR इज द कंबाइंड रोटेशनल लॉस ऑफ मोटर एंड जनरेटर। तो सपोज करो कि दोनों मशीन्स अगर आइडेंटिकल है, विच वी जनरली टेक इन द हॉपकिंसंस टेस्ट, ठीक है, तो आइडेंटिकल होने से हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि जो रोटेशनल लॉसेस है इन दोनों मशीन्स में इक्वली डिवाइड है, ठीक है। तो PR/2 इज द रोटेशनल लॉस ऑफ मोटर, PR/2 इज द रोटेशनल लॉस ऑफ जनरेटर। अगर हमने यहाँ पे PR निकाला तो ये PR/2 हो जाता है, ठीक है, मोटर और जनरेटर का। सो efficiency of generator is what? Efficiency of generator is electrical output। तो electrical output कितना है, देखो V I1 is the line current output, right? I1 is the final line current which is going in the terminal। तो V into I1 is the electrical output of the generator, ठीक है। तो अब डिवाइडेड बाय इनपुट ऑफ जनरेटर, अब इनपुट ऑफ जनरेटर क्या है, आउटपुट प्लस ऑल द लॉसेस। तो आउटपुट हमें पता है कि V into I1 इज द इलेक्ट्रिकल आउटपुट प्लस लॉसेस। अब क्या क्या लॉसेस है इसमें, रोटेशनल लॉस PR/2 plus the copper loss in armature winding plus copper loss in the field winding, ठीक है। तो इस तरह से जनरेटर का एफिशिएंसी मिल जाता है हमें हॉपकिंसंस टेस्ट से। और मोटर का एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, मोटर में क्या होता है, आउटपुट ऑफ द मोटर बाय इनपुट ऑफ मोटर। अब इनपुट ऑफ मोटर तो हमें पता है कि वी इलेक्ट्रिकल इनपुट कितना है, I1 + I2, उसका मतलब हमारा ये लाइन करंट है। तो V into I1 + I2 विल बी द इलेक्ट्रिकल इनपुट, ठीक है। अब और ये अब आउटपुट क्या है, आउटपुट इज इनपुट माइनस लॉसेस। तो इनपुट हम, क्योंकि देखो मोटर का आउटपुट तो मैकेनिकल होता है ना, तो मैकेनिकल आउटपुट तो हम लोग मतलब ऐसे डायरेक्टली तो नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको इनपुट के रेफरेंस में लिख रहे हैं, ठीक है, इनपुट के विद रिस्पेक्ट में। तो इसलिए इनपुट माइनस लॉसेस कर रहे हैं जिससे कि हम लोग लिख सके। तो इनपुट इज द इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी फॉर द मोटर, तो इनपुट में कितना है, V into I1 + I2 माइनस लॉसेस। तो यहाँ पे भी लॉसेस क्या है, रोटेशनल लॉस प्लस कॉपर लॉस इन द आर्मेचर वाइंडिंग प्लस कॉपर लॉस इन द फील्ड वाइंडिंग। तो इस तरह से सारे लॉसेस निकाल दिए अगर इनपुट में से, तो हमारे पास बचेगा आउटपुट, ठीक है। तो आउटपुट बाय इनपुट, तो इस तरह से वी कैन कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ बोथ द केसेस, ठीक है। सो लेट अस नाउ सी द क्वेश्चंस। तो मैंने जैसे एक्सप्लेन किया, इफ वी फॉलो दिस देन वी कैन गेट द करेक्ट आंसर, ठीक है। Now, in this, so what they have said is in this question, कि a Hopkinson's test is performed on two identical shunt machines. Line voltage is 250 volt. They have said field currents 1.2 ampere and 1.5 ampere, armature currents 145 ampere and 115 ampere. And they have said armature resistance is identical for both the machines, which is 0.15 ohm. अब समवन विल आस्क दैट ओके, यहाँ पे बोला है फील्ड करेंट्स है 1.2 एम्पियर एंड 1.5 एम्पियर, और आर्मेचर करंट्स बोला है 144 एम्पियर 115 एम्पियर। कौन सा आर्मेचर, हाँ, कौन सा आर्मेचर करंट किसका है, कौन सा फील्ड करंट किसका है, कौन से मशीन का है, ठीक है। तो लेट अस सी दैट। तो अब देखो आर्मेचर करंट्स तो हमें पता है कि 145 एम्पियर। तो इफ यू सी दिस, लेट अस गो हियर, ठीक है। तो मोटर का करंट जो है I1 + I2 है, और जनरेटर का करंट I1 है। तो मोटर का करंट अगर देखेंगे आर्मेचर करंट, तो जनरेटर से ज्यादा है, ठीक है। क्योंकि इसमें इसके इफ यू सी द आफ्टर अप्लाइंग KCL, जनरेटर आउट करंट इज I1, ठीक है। बट हियर द करंट विच वाज टेकिंग फॉर बोथ द मशीन्स वाज I2। तो यहाँ पे मोटर का करंट कितना हो गया, I1 + I2। सो वी कैन सी दैट द मोटर आर्मेचर करंट I1 + I2 इज मोर देन जनरेटर आर्मेचर करंट विच इज I1, ओके। तो इसीलिए हमें पता है कि जो ज्यादा वाला जो क्वांटिटी है वो है मोटर का, और कम वाला क्वांटिटी जो है वो है जनरेटर का, ठीक है। सो लेट मी राइट दिस देन दिस इज फॉर मोटर, दिस इज फॉर जनरेटर, ठीक है। अब क्या होता है, जनरली दे राइट इट इन दिस सीक्वेंस ओनली, कि सपोज करो ये आर्मेचर करंट है 1 2, तो मोटर फील्ड करंट इज ऑल्सो 1 2। इट इज अ वे ऑफ स्पीकिंग, ओके, इन इंग्लिश, कि ओके फील्ड करेंट्स आर 1.2 एंड 1.5 एंड आर्मेचर करेंट्स आर 145 एंड 115। तो जो यहाँ पे जो सीक्वेंस है मोटर जनरेटर का, दैट इज द सेम सीक्वेंस हियर ऑल्सो, ओके। इट्स अ वे ऑफ स्पीकिंग, लाइक हियर दे शुड हैव सेड रिस्पेक्टिवली, तो ये और भी क्लियर हो जाता। पर अगर नहीं बोला है तो यू टेक इट एज रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो रिस्पेक्टिवली का मतलब है कि अच्छा इसका जैसे यहाँ पे मोटर फर्स्ट 145 है, 115 है, तो मोटर पहले पहला वाला है, तो यहाँ पे 1.2 एम्पियर भी मोटर होगा पहला वाला, ठीक है। और 1.5 एम्पियर इज द जनरेटर।
Now we have to estimate the efficiency. Okay, so let us see how to estimate the efficiency. So first of all, um, we so we have to estimate the efficiency of motor. तो मोटर का efficiency कितना था? मोटर का efficiency था मोटर का electrical input. So motor electrical input. So this is the efficiency of motor. So it is output of motor. Yes, tell me. जो लिख रहे हैं वो शो नहीं कर रहा है. Okay, let me just go here. Okay. शो कर रहा है. Okay, okay. So why it is coming like this? Okay, just let me see how I'm sharing my screen. Okay, so let me share it. So entire screen share. Okay, अभी डिस्प्ले कर रहा है क्या? Okay, so let me just tell me. Okay, so I'm writing now output of motor by input of motor. So did you see this equal to sign? Okay, ठीक है. So output of motor is what? Because the output of motor is mechanical, but we can calculate the electrical quantities. ठीक है. So we'll be what you say representing it in electrical quantities. Okay. So what is the output of motor? It is input of motor minus losses divided by input of. नहीं नहीं, मोटर का ही इनपुट ना, तो एफिशिएंसी ऑफ मोटर ओनली वी आर टॉकिंग. ठीक है, तो दैट इज वाई इनपुट ऑफ मोटर ओनली. तो इनपुट ऑफ मोटर इज नथिंग बट आउटपुट ऑफ जनरेटर. यू कैन टेल दैट, बट इट इज नॉट एग्जैक्टली द सेम बिकॉज इसका करंट कितना था इफ यू सी. तो लेट अस डू इट वन स्टेप बाय स्टेप. ओके, तो first of all you see this. So here it is like this. So let us, so first of all you see the line current drawn from the supply. Okay, so line current drawn from the supply excluding the field currents is 145 minus 115 एम्पियर, क्योंकि एक का 145 है एक का 115 है, तो इन्होंने ऐसे लिखा है. ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं? अब हम लोग सारे लॉसेस एक जगह लिख दे रहे सारे मशीन्स के, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका पार्ट में एफिशिएंसी ऑफ जनरेटर पूछा है. तो वी विल बी राइटिंग डाउन ऑल द थिंग्स फॉर बोथ मोटर एंड जनरेटर. ओके, तो फील्ड कॉपर लॉस ऑफ द मोटर. सो फील्ड कॉपर लॉस कितना हो गया? हमें देखो करंट दिया है पर हमें रेजिस्टेंस के बारे में नहीं दिया है. ठीक है, आर्मेचर रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया है पर फील्ड रेजिस्टेंस नहीं दिया है. तो अगर फील्ड रेजिस्टेंस दिया होता तो क्या होता? आई जो जो भी फील्ड करंट है आई स्क्वायर इनटू द फील्ड रेजिस्टेंस. बट दे हैव नॉट गिवन अस द फील्ड रेजिस्टेंस. सो व्हाट वी विल डू इज वी विल मल्टीप्लाई दिस वोल्टेज बिकॉज you see it is like this, right? The field of the machines is like this because it is a shunt machine. So suppose this is the field current and this is the terminal voltage. So this voltage into current will also give me the loss in the field winding, right? You will see that V into IF will be same as IF square RF. Okay, it will be same. So that is why for calculating the field copper loss, because we are given the information of field current and voltage, so we'll be using voltage V into IF like this. ठीक है, तो मोटर का कितना है? मोटर का voltage for both motor and generator is same. So voltage into motor field current is 1.2. ठीक है, so motor field current, field copper loss of generator is voltage into the field current of generator. So field current of generator in the question is given as 1.5 here, you can see. ठीक है, and copper loss of the motor is what you say armature current. So armature current of motor is 145 ampere. So 145 square into 0.15 because armature resistance is 0.15. फिर armature copper loss of generator is armature current of generator which is 115. So 115 square into 0.15 which is the armature resistance. ठीक है, तो हमें पता है कि रोटेशनल लॉसेस कैसे निकलता है. रोटेशनल लॉसेस ऑफ द मशीन इज द टोटल व्हाट यू से इफ यू सी this is what so they are basically what they have done is they have said that okay, so here this is, you see it is like, so let me go back to that diagram. Okay, so you see in this diagram,
सो दे हैव सेड दैट ओके, और इसका जो I1 जो है इट इज आर्मेचर करंट, ठीक है। तो देखोगे कि यहाँ पे भी मैंने I1 जो था आर्मेचर करंट ही लिया था, ठीक है। तो दिस इज द I1 करंट, ठीक है, I1। सो दिस I1, they have said that okay, this I1 plus this I2, okay, so this is flowing in the motor। तो इसलिए अगर हमें I2 निकालना है, जिससे कि हम लोग टोटल लॉस निकाल सके मोटर जनरेटर सेट का, तो व्हाट वी हैव डन इज वी हैव जस्ट सब्ट्रैक्टेड दिस, व्हाट यू से, so we have to basically do it using the line currents, okay। You see this this I1 plus I2 and this I1 is the line currents of motor and generator respectively, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखेंगे तो देखो I2 plus I1 is the line current of the motor and I1 is the line current of the generator, ठीक है। तो अगर हमें ये I2 निकालना है, this I2, okay, so if we have to, so this is the, suppose motor, ठीक है, this is generator, so this is taking I1 plus I2, this is I2, this is I1, तो इट इज लाइक दिस। नाउ क्योंकि हमें टोटल, मतलब जो भी हमारा, अब तो हमें याद है कि इनपुट करंट विच दीज टू सेट्स टू मशीन्स आर टेकिंग इज बीइंग टेकन फॉर मीटिंग द लॉसेस। तो ये V इंटू I2 जो है वो टोटल लॉस है। इसी में से तो हम लोग कॉपर लॉस सब्ट्रैक्ट करेंगे सो दैट वी कैन गेट द रोटेशनल लॉसेस ऑफ बोथ द मशीन्स, ओके। सो दैट इज व्हाई व्हाट वी विल डू इज we will here we will first for calculating I2, and we know that this I1 is the line current of the generator, okay, and this is the line current of the motor। So here in the information we are given the armature currents of both the machines and field currents of both the machine, so we can calculate the line current for both the machines, ठीक है। So what is the line current of the generator? So the line current of the generator is equal to this, right? Armature current of the generator minus field current of the generator, right? Now, what about the line current of the motor? Line current of the motor minus the field current of the motor is the armature current of the motor, ठीक है, लाइक दिस। तो लाइन करंट ऑफ जनरेटर हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। तो आर्मेचर करंट ऑफ जनरेटर इज 115 एम्पियर माइनस द फील्ड करंट ऑफ द जनरेटर इज 1.5 एम्पियर, ठीक है, लाइक दिस। और यहाँ पे भी हम लोग लाइन करंट ऑफ मोटर निकाल सकते हैं विच इज आर्मेचर करंट ऑफ मोटर प्लस फील्ड करंट ऑफ मोटर। सो आर्मेचर करंट ऑफ मोटर इज 145 प्लस फील्ड करंट ऑफ मोटर इज 1.2, okay। So like this. So like this we can calculate the line current of generator and line current of motor. And what is I2? I2 is nothing but line current of the motor minus line current of generator, ठीक है। तो इस तरह से हमें I2 आ जाएगा, ठीक है। सो लेट मी जस्ट राइट दीज वैल्यूज। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट, ओके, कि यहाँ पे जो हम लोग यूज कर रहे हैं ना, लाइन करंट्स यूज कर रहे हैं, तो V इंटू I2 भी जो आएगा टोटल लॉस, इट इज इक्वल टू द I2 इज द डिफरेंस ऑफ द लाइन करंट्स, ओके। इन्होंने एक्चुअली गलती किया है, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने डिफरेंस ऑफ आर्मेचर करंट्स ले लिया है, जो कि सही नहीं है, ठीक है। इनके सॉल्यूशन में इट इज द डिफरेंस ऑफ द लाइन करंट्स, ओके, टू बी एग्जैक्ट। Actually, there are many mistakes in this assignment, but I will tell you, okay, that you should not do like this. It is the difference of the line currents, okay. So let me write it in the other color so that you don't do this mistake, okay. So I2 is difference of line currents, okay. This is very important. अगर जहां भी समझ नहीं आए तो प्लीज आस्क मी, ओके। यू बोथ संबित एंड शिव कुमार महातो, यू शुड आस्क, ओके, जहां भी समझ नहीं आए, ठीक है। तो let me just calculate. So what is 115 minus 1.5? So this is 113 point something, right? So this is 113.5.
ठीक है. And what about this? Line current of motor is 145 plus 1.2, so which comes out to be 146.2. ओके, तो ये इस तरह से आ गया. तो अब हमें पता है कि हमें अब क्या करना है. फॉर कैलकुलेटिंग द रोटेशनल लॉस पी आर, इट इज इक्वल टू टोटल लॉस माइनस टोटल कॉपर लॉस. ठीक है. तो टोटल लॉस कितना है, क्योंकि हम लोग ये जो आई टू करंट जो ड्रॉ कर रहे हैं, ये हम लोग ना लॉसेस को मीट करने के लिए ही ड्रॉ कर रहे हैं. तो V इंटू आई टू इज द टोटल लॉस. ओके. सो V इंटू आई टू इज द टोटल लॉस. सो आई टू इज व्हाट? आई टू इज 146.2 माइनस 113.5. ओके. तो ये आई टू है. तो जो भी होगा कैलकुलेट करके यू कैन राइट इट. ओके. ये रॉन्ग है. ये दिस इज नॉट करेक्ट. दिस दे हैव कैलकुलेटेड आई टू एज डिफरेंस ऑफ आर्मेचर करंट्स. ओके. इट इज नॉट करेक्ट. दे कैन नॉट मेक assumptions like this. Okay, they have said line current drawn from the supply excluding the field currents. That is not correct, right? Because if they have not given the information of field currents, okay, I can understand ki because these values are very high, then you can take that, okay, they are very negligible compared to field currents. But they have also given field current separately, so in that case you should exactly find the line current. See, they are using the term line current. Okay. But they are excluding the field current, so that is not correct. Okay. So yes, tell me. ओके, आई टू 32.7 आएगा. अच्छा, देख. तो एक मिनट मैं भी देखती हूँ. यस, यू आर करेक्ट. सो आई टू इज 32.7. ठीक है. तो यहाँ पे हमें V पता है. V तो 250 वोल्ट है. ठीक है. तो 250 इंटू दिस आई टू विल गिव मी द व्हाट यू से टोटल लॉस. ठीक है. अब टोटल कॉपर लॉस क्या है? टोटल कॉपर लॉस होगा हमारा, जो ये हमने जो भी कॉपर लॉसेस यहाँ पे लिखे हैं. ठीक है. ये कॉपर लॉस ऑफ द मोटर, फील्ड कॉपर लॉस ऑफ मोटर, फील्ड कॉपर लॉस ऑफ जनरेटर, आर्मेचर कॉपर लॉस ऑफ मोटर, आर्मेचर कॉपर लॉस ऑफ जनरेटर. ओके. तो ये सारे लॉसेस को सब्ट्रैक्ट कर दें अगर हम लोग. सो फील्ड copper loss. So let me write it as CUF, field. Okay, CUF. FM means motor. Okay. So let me write it as copper loss field of motor plus copper loss field generator plus copper loss armature motor, copper loss armature generator. Okay. ये सारे कॉपर लॉसेस अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें रोटेशनल लॉस मिलेगा. ठीक है. अब हर एक मशीन का रोटेशनल लॉस कितना हो जाएगा? PR/2. राइट. तो PR/2 इज द रोटेशनल लॉस ऑफ मोटर, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल मशीन्स हैं. ठीक है. देखो लिखा भी हुआ है क्वेश्चन में, टू आइडेंटिकल शंट मशीन्स. ठीक है. तो आइडेंटिकल होने की वजह से ये जो भी जो टोटल रोटेशनल लॉसेस जो निकला दोनों मशीन्स का, वो हम लोग एज्यूम करते हैं कि दोनों में इक्वली डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, हाफ हाफ करके. तो ये अब मोटर इनपुट क्या है? मोटर इनपुट इज नथिंग बट, व्हाट इज मोटर इनपुट? सो हाँ. सो मोटर इनपुट इज नथिंग बट वोल्टेज अक्रॉस मोटर टर्मिनल्स इनटू लाइन करंट ऑफ मोटर. तो लाइन करंट ऑफ मोटर कितना है? 146.2. तो इसीलिए 146.2 इंटू 250, तो यही है. ठीक है. इन्होंने यहाँ पे सही लिया है. इन्होंने लाइन करंट मोटर का अब यहाँ पे सेम सही लिया है, पर यहाँ पे इन्होंने लाइन करंट में फील्ड करंट से एक्सक्लूड कर दिया था. ठीक है. तो if you see this, they have taken it correct. 145 plus 1.2 is this only. 145 plus 1.2, 146.2. ओके. तो इस तरह से हमारा ये मोटर इनपुट आ गया. तो एज आई रोट हियर, तो इन द डिनोमिनेटर वी विल राइट इनपुट ऑफ मोटर. सो हियर ऑल्सो वी हैव रिटन इनपुट ऑफ मोटर. ठीक है. अब यहाँ पे क्या है? इनपुट ऑफ मोटर माइनस लॉसेस. तो इनपुट ऑफ मोटर तो यही है, और माइनस लॉस, तो सारे लॉसेस को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे. ठीक है. तो सारे लॉस क्या क्या है इसमें? इसमें है व्हाट यू से द field copper loss of motor 215 to 1.2, so minus 215 put to 1.2, minus what you say armature copper loss of the motor which is 145 square into 0.15 minus the rotational losses. ठीक है. ये जो रोटेशनल लॉसेस जो है, जो कि करेक्ट वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने तो अप्रोक्सीमेटली किया था, तो एग्जैक्टली फाइंड करना पड़ेगा PR/2 करके. तो वो रोटेशनल लॉस, तो इस तरह से करने से एफिशिएंसी आ जाएगा. इज दिस क्वेश्चन क्लियर?
आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर, राइट? क्योंकि इन्होंने क्या किया है, इन्होंने लाइन करंट में मतलब आर्मेचर फील्ड करंट नहीं इंक्लूड किया कैलकुलेट करते समय, बट यू शुड इंक्लूड इट, ओके? इफ दे हैव गिवन यू द इंफॉर्मेशन ऑफ फील्ड करंट्स, देन you should include it, because then your answer is exactly correct, okay? So now we will go to the next question of this. Now in this next question of this, we have to calculate the efficiency of the generator. Very easy, because वैसे ही same है. The efficiency of generator is nothing but generator output by generate, हाँ, input. हाँ, तो अब जनरेटर का इनपुट जो होता है वो तो मैकेनिकल होता है, तो इसलिए हम लोग उसको आउटपुट के टर्म्स में ही एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है? जनरेटर आउट प्लस लॉसेस, ओके? तो जनरेटर आउटपुट इज व्हाट? इट इज द वोल्टेज इनटू लाइन करंट ऑफ जनरेटर, V इनटू लाइन करंट ऑफ जनरेटर प्लस लॉसेस, ठीक है? तो लाइन, हाँ बताओ। हाँ, कोई भी मशीन का इनपुट, कोई भी मशीन का, ठीक है? वेदर इट बी मोट, तो यहाँ पे भी देखो मोटर में भी हमने क्या किया था, आउटपुट ऑफ मोटर बाय इनपुट ऑफ मोटर, तो इनपुट को ऐसे ही छोड़ दिया। तो आउटपुट ऑफ एनी मशीन इज नथिंग, आउटपुट प्लस लॉसेस ऑफ एनी मशीन इज इक्वल टू इनपुट ऑफ दैट मशीन, ओके? तो इसीलिए जब हमने जब आउटपुट को एक्सप्रेस किया, तो एक्सप्रेस उसको इनपुट माइनस लॉसेस करके किया, ठीक है? तो वैसे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आउटपुट प्लस लॉस करके इनपुट को रिप्लेस कर रहे हैं। तो अब देखो लाइन करंट ऑफ जनरेटर क्या है? लाइन करंट ऑफ जनरेटर इज व्हाट वी हैव कैलकुलेटेड, राइट? सो दिस इज हियर वी हैव कैलकुलेटेड, सो दिस इज 113.5, okay? So this is nothing but V into 113.5, so this is V in, हाँ, डिवाइडेड बाई V इंटू 113.5। V तुम्हारा 250 वोल्ट है, तो ये 250 लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है? 250, ये भी 250 प्लस लॉसेस। अब लॉसेस क्या है? सारे लॉसेस, तो हमने देखो यहाँ पे सारे लॉसेस इंक्लूड किया है, तो सारे लॉसेस देखो, इसके भी जनरेटर का कॉपर लॉस ऑफ जनरेटर प्लस 250 इंटू 1.5, ठीक है? तो इसको प्लस 250 इंटू 1.5 प्लस आर्मेचर लॉस ऑफ द, क्या कहते हैं, जनरेटर। तो आर्मेचर लॉस कितना है? आर्मेचर करंट इसका 145 नहीं है, इसका आर्मेचर करंट 115 है, जनरेटर है ना, तो जनरेटर का तो आर्मेचर करंट कम वाला होता है, ठीक है, हॉपकिंसंस टेस्ट में। तो देखो जनरेटर का आर्मेचर करंट कितना है, जनरेटर का, इफ यू सी द कॉपर लॉस, इट इज 115 स्क्वायर। देखो हमने लिखा था ना यहाँ पे कि 115 तो जनरेटर का है, ठीक है? तो 115 स्क्वायर इंटू 0.115 इज द जनरेटर का आर्मेचर कॉपर लॉस, ठीक है? अब यहाँ पे है PR/2, तो हमने तो PR निकाला था, रोटेशनल लॉसेस, यहाँ से देखो रोटेशनल लॉसेस ऑफ ईच मशीन, PR/2 करके, ये PR है और ये PR/2 है, ठीक है? तो ये PR/2 लिख देना है, तो इस तरह से हम लोग एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, ठीक है? क्योंकि एफिशिएंसी परसेंटेज में पूछा है, तो इसको इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज में आंसर आएगा, ठीक है? तो ऐसा है। नाउ वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा लेंदी है, तो ध्यान से देखना, ठीक है? 16 किलोवाट 250 वोल्ट शंट मोटर has 120 ohm field resistance, ठीक है? Its maximum efficiency is 85%. It reaches its maximum efficiency when it delivers 82% of its full load. At this loading 82% of full load, the speed is 900 rpm. अब बोला है कि अब न्यू कंडीशन में मोटर ड्रॉज 98 एम्पियर, देन एस्टिमेट द स्पीड, ठीक है? तो पहले देखो हमें क्या करना है, हमें तो बेसिकली हम लोग कैसे कर सकते हैं स्पीड का कंपैरिजन? वी नो कि स्पीड का कंपैरिजन करने के लिए वी कैन यूज बैक ईएमएफ, राइट? कि बैक ईएमएफ, बिकॉज ये शंट मोटर है, तो और अगर फील्ड रेजिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, तो बैक ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू N इंटू फाई, और ये फाई जो है एक केस में और दूसरे केस में कांस्टेंट है, ठीक है? तो अगर हम लोग इन दोनों का बैक ईएमएफ का रेशियो ले लें, EB1/EB2, तो हमें N1/N2 आ जाएगा। तो हमें बेसिकली क्या करना है, हमें बैक ईएमएफ निकालना है, ठीक है? अब बैक ईएमएफ कैसे निकालें, ठीक है? सो लेट अस सी इट। अब जब कभी भी शंट मोटर का, कोई भी मशीन का जब ऐसे पावर मेंशन्ड होता है ना, 16 किलोवाट शंट मोटर, ठीक है? तो ये हमेशा याद रखना कि 16 किलोवाट ना आउटपुट है मोटर का, ठीक है?
इसी तरह से मोटर को हम लोग रेटिंग लिखते हैं। तो ये जो है ये आउटपुट है मोटर का, ठीक है, इनपुट नहीं है। ठीक है, तो 16 किलो वाट जो है ये आउटपुट है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये आउटपुट से अब हम लोग निकालने का कोशिश करेंगे बैक ईएमएफ। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे देखो। ठीक है, तो हमें हमें प्रॉब्लम क्या है कि हमें आर्मेचर करंट पता नहीं। अगर हमें आर्मेचर करंट पता होता इन दोनों केसेस में, तो डायरेक्टली वी माइनस आई ए आर ए करके हम लोग को ईबी मिल जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। ठीक है, दूसरे केस में हमारे पास 98 एम्पियर का इंफॉर्मेशन है, तो इस केस में हमारा ईबी टू निकल जाएगा देखो, वी माइनस आई ए टू आर ए करके। तो क्योंकि हमारा वी जो है 240 वोल्ट है, और आर्मेचर देखो करंट जो ड्रॉ कर रहा है, ड्रॉ जो कर रहा है मोटर, वो लाइन करंट ड्रॉ करता है। ठीक है, तो इसमें से आर्मेचर करंट क्या हो जाएगा, लाइन करंट माइनस फील्ड करंट। ठीक है, तो लाइन करंट है इस मशीन का कितना, इसका है कितना, तो लाइन करंट 98 दिया है। और फील्ड करंट कैसे निकालेंगे, वोल्ट शंट मशीन के लिए वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस करने से फील्ड करंट आ जाएगा। फील्ड रेजिस्टेंस कर टर्मिनल वोल्टेज डिवाइडेड बाय फील्ड रेजिस्टेंस विल गिव मी फील्ड करंट, वी बाय आर एल। हाँ, सो 98 माइनस टू विच इज 96। ठीक है, तो ये इस केस में तो ई भी डायरेक्टली आ जाएगा। ठीक है, और आर ए भी शायद से पता है, अच्छा आर ए भी नहीं पता है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत कुछ हमें पता नहीं है। इस केस में तो आर ए पता नहीं, और इस केस में तो आई ए वन और आर ए दोनों नहीं पता। तो कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो अब देखो कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, वी विल गो टू आवर बेसिक्स। कि ओके, हमें पता है कि ईबी इंटू आई ए क्या होता है, ईबी इंटू आई ए इज मैकेनिकल पावर डेवलप। अगर वो डायग्राम याद होगा, ये वाला डायग्राम, कि V इंटू आई एल, फिर इससे जो कॉपर लॉसेस निकल गया, तो ईबी इंटू आई ए, फिर इससे जब रोटेशनल लॉसेस निकाल दिया, तो वी गेट शाफ्ट शाफ्ट पावर। हाँ, शाफ्ट मैकेनिकल पावर। ठीक है, तो ये वाला, तो इससे हमें क्या होगा, ईबी इंटू आई ए में अगर हम लोग अगर हमें ईबी निकालना है, तो हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं कि ये जो शाफ्ट पावर है, उसमें अगर रोटेशनल लॉसेस ऐड कर दिए, तो ईबी इंटू आई ए के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये एक तरीके से हम लोग ईबी इंटू आई ए निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो कि कैसे होता है, तो लेट अस सी। ठीक है, सो हियर यू सी कि पहले तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसका कंडीशंस यूज करेंगे, ताकि हम लोग कांस्टेंट लॉसेस निकाल पाए। क्योंकि मैंने जैसे बताया कि ईबी इंटू आई ए विल बी इक्वल टू शाफ्ट पावर विच इज इक्वल टू दिस 16 किलोवाट। राइट, 16 किलोवाट जो है फुल रेटेड पावर है। पर हमें स्पीड किस कंडीशन का दिया है, 900 आरपीएम, वो है 82% ऑफ फुल लोड का। ठीक है, तो शाफ्ट पावर जो है इसका 82% हमें लेना है। ठीक है, क्योंकि इसी कंडीशन के ईबी के लिए हमें 900 आरपीएम देना है। तभी तो हम लोग वो ईबी वन बाई ईबी टू करके एन वन बाई एन टू कर सकते हैं। अगर हम लोग इसी केस का, अगर हम लोग इसी एन वन के लिए ईबी वन निकालेंगे, तभी तो हम लोग कर सकते हैं ना। तो इसका तो एन वन 900 आरपीएम है, और कौन से कंडीशन पे, 82% ऑफ फुल लोड पे, और फुल लोड कितना है, 16 किलोवाट। ठीक है, तो ये जो शाफ्ट पावर है, ईबी इंटू आई इज नथिंग बट शाफ्ट पावर इंटू 0.82, ये हमें पता है। ठीक है, 16 किलोवाट प्लस कांस्टेंट लॉसेस। अब कांस्टेंट लॉसेस कैसे निकालें, तो अब देखो कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो हमें पहली बात ये, हमें ये भी पता है कि बेसिकली इफ यू सी दिस, सो इट इज लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड टोटल लॉस। ठीक है, तो टोटल लॉस कैसे निकालेंगे, टोटल लॉस इज नथिंग बट इनपुट माइनस आउटपुट। ठीक है, आउटपुट हमें दिया हुआ है 16 किलोवाट, बट 82% के लोडिंग पे, सम याद रखना 82% लोडिंग पे। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, 6 इंटू 16। ठीक है, और इनपुट कैसे निकालेंगे, अब इनपुट के लिए देखो हमें दिया हुआ है कि ये 82% जब लोड किया गया था, तो उसका एफिशिएंसी था 85%। तो हमें पता है एफिशिएंसी क्या होता है, आउटपुट बाय इनपुट। अब हमें एफिशिएंसी दिया हुआ है 85%। ठीक है, तो अगर हम लोग इन तो अगर हमें इनपुट निकालना है, तो वो हो जाएगा आउटपुट बाय एफिशिएंसी।
ठीक है। आउटपुट कितना है, 16 किलोवाट इंटू 0.82, इंटू 0.82 याद रखना क्योंकि 82% है वो, ठीक है। तो 16 किलोवाट, हाँ, फिर डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी 0.85, ठीक है। क्योंकि आउटपुट तो हमारा 100% लोडिंग पे नहीं है ना, 82% लोडिंग पे है। तो इसलिए आउटपुट में देखो हर जगह 0.82 का फैक्टर मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, देख रहे हो कहीं भी। जैसे शाफ्ट पावर में भी जब हम लोग कैलकुलेट किए तो शाफ्ट पावर में भी 16 किलोवाट इंटू 0.82 की है। फिर आउटपुट में यहाँ पे भी 16 किलोवाट इंटू 0.82 की है। इसलिए इस यहाँ पे भी 16 किलोवाट इंटू 0.82 ही आउटपुट लिख रहे हैं। और एफिशिएंसी कितना है, 85% है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये इनपुट आ गया, 16 किलोवाट इंटू 0.82 बाई 0.85। तो इस तरह से हमें टोटल लॉस आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल लॉस इतना आएगा, कैलकुलेट कर सकते हो बाद में, ठीक है, ऐसे आएगा। अब ये लोग ने बोला है कि ये मैक्सिमम एफिशिएंसी रीच करता है इस कंडीशन पे। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी के कंडीशन में क्या होता है ना, कि ये याद रखना किसी भी मशीन के लिए मैक्सिमम कंडीशन में क्या, मैक्सिमम एफिशिएंसी कंडीशन में ट्रांसफार्मर में भी होता है कि कांस्टेंट लॉसेस इज इक्वल टू वेरिएबल लॉसेस, ठीक है। तो कांस्टेंट लॉसेस में आता है रोटेशनल लॉस प्लस आयरन लॉस प्लस फील्ड कॉपर लॉस, दिस इज इक्वल टू आर्मेचर कॉपर लॉस, ओके। ये कंडीशन है मैक्सिमम एफिशिएंसी का, ओके। सो दिस इज मैक्सिमम एफिशिएंसी कंडीशन, सो लेट मी राइट इट। सो दिस इज मैक्सिमम एफिशिएंसी कंडीशन, ओके। सो दिस इज द मैक्सिमम एफिशिएंसी कंडीशन। तो ये हो गया। तो अब हम लोग, तो इसीलिए क्या है कि जो टोटल लॉस जो है, अब टोटल लॉस को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, टोटल लॉस को वी कैन राइट इट लाइक दिस, टोटल लॉस इज इक्वल टू वेरिएबल लॉस प्लस कांस्टेंट लॉस, ठीक है। अब हमें पता है कि वेरिएबल लॉस और कांस्टेंट लॉस सेम है, तो टोटल लॉस इज इक्वल टू 2 टाइम्स कांस्टेंट लॉस। वेरिएबल लॉस की जगह अगर हम लोग कांस्टेंट लॉस रिप्लेस कर दे, क्योंकि दोनों तो सेम है, तो इसलिए 2 टाइम्स कांस्टेंट लॉस आ जाएगा दोनों का एडिशन। तो हमारा कांस्टेंट लॉसेस क्या हो जाएगा, टोटल लॉसेस बाई 2, ठीक है। तो मैं इसको अब दूसरे स्लाइड पे लिखती हूँ, सो लेट मी गो इनटू द अनदर स्लाइड आल्सो। अच्छा, इसको हटाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ तक थी, ठीक है। तो टोटल लॉस जो है वो है क्योंकि टोटल लॉस इज इक्वल टू वेरिएबल लॉस प्लस कांस्टेंट लॉस, और मैक्सिमम एफिशिएंसी में क्या होता है कि कांस्टेंट लॉस इज इक्वल टू वेरिएबल लॉस। तो इसलिए से हम लोग क्या कर सकते हैं, टोटल लॉस बाई 2 इज इक्वल टू कांस्टेंट लॉस, ठीक है। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी कंडीशन में, ठीक है, कांस्टेंट लॉस, इसको थोड़ा सा ऐसे हटा देती हूँ, 1 मिनट। कांस्टेंट लॉस इज इक्वल टू टोटल लॉस बाई 2, ठीक है। तो इस तरह से देखो, इन्होंने जो टोटल लॉस बाई 2 किया तो इनको ये कांस्टेंट लॉस आ गया, ठीक है। अब क्या है, अब हमें पता है कि क्योंकि ये कांस्टेंट लॉस इज इक्वल टू वेरिएबल लॉस ऑल्सो, दिस इज इक्वल टू वेरिएबल लॉस, और वेरिएबल लॉस क्या है, आर्मेचर कॉपर लॉस, देखो मैंने क्या लिखा था, इज इक्वल टू आर्मेचर कॉपर लॉस विच इज द वेरिएबल लॉस। ये सारे कांस्टेंट क्वांटिटीज है, रोटेशनल लॉस, आयरन लॉस, फील्ड कॉपर लॉस, डीसी मशीन के लिए। तो ये कांस्टेंट लॉसेस जो है ये इक्वल टू वेरिएबल लॉस है, तो वेरिएबल लॉस क्या, आर्मेचर है, तो ये दिस इज इक्वल टू आर्मेचर कॉपर लॉस, ठीक है। तो इस तरह से करने से वी ऑल्सो गेट आर्मेचर कॉपर लॉस एज दिस वैल्यू, ओके।
क्योंकि वेरिएबल लॉस शुड बी इक्वल टू कांस्टेंट लॉसेस। तो ये वेरिएबल लॉस है और ये कांस्टेंट लॉस है, दोनों सेम है। समझ रहे हैं? तो ये चीज है। अब हम लोग क्या करेंगे? सो इन द वेरिएबल लॉस, इफ वी व्हाट यू से, सो फ्रॉम द वेरिएबल लॉस व्हाट, so this is the thing, okay? So now what we will do is we will subtract the, if you see from this, we have to, from EBIA we have to subtract the what, so it is like this, okay? So this was the power flow, right? This is V into IL। तो इसमें से गए कॉपर लॉस, तो इससे आया हमें मैकेनिकल पावर डेवलप्ड, और मैकेनिकल पावर डेवलप्ड में से मैकेनिकल लॉसेस निकाला। हम्म। तो हमें आया शाफ्ट पावर। ठीक है, ऐसा है। तो ये है। ठीक है। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें बेसिकली ये निकालना है। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन कैलकुलेट द आर्मेचर करंट। ओके। तो अब अगर हम लोग याद करेंगे तो इस केस में, फर्स्ट केस में, सेकंड केस में हमें आर्मेचर रेजिस्टेंस अननोन था, बट फर्स्ट केस में आर्मेचर रेजिस्टेंस आर्मेचर करंट दोनों अननोन है। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? आर्मेचर करंट निकालने का कोशिश करेंगे। ठीक है। तो आर्मेचर करंट कैसे निकालेंगे? तो ये क्या है? ये है हमारा शंट मोटर। तो शंट मोटर के लिए आर्मेचर करंट क्या होता है? इट इज इक्वल टू लाइन करंट माइनस फील्ड करंट। ठीक है। तो लाइन करंट क्या है? तो देखो, तो हमें पता है कि हमारा आउटपुट कितना है। ठीक है। तो पहली बात हमें क्या, हमें इनपुट पता है, राइट? दिस इज द इनपुट, दिस इज द बेसिकली इनपुट पावर। तो इनपुट पावर इज व्हाट? इनपुट पावर इज basically, you see how I have calculated input power, output power by efficiency। ठीक है। तो आउटपुट पावर कितना था? तो आउटपुट था 82% लोडिंग के लिए 16 0.82 बाई एफिशिएंसी ऑफ दिस। ठीक है। तो ये हमें दिया हुआ था 0.85। तो ये हमारा इनपुट पावर। तो इनपुट पावर किसकी इक्वल है? देखो, इनपुट पावर इज इक्वल टू V इंटू IL। तो IL क्या हो जाएगा? 16 इंटू 0.82 बाई 0.85 डिवाइडेड बाई V। ठीक है। और आर्मेचर करंट हमें पता है, लाइन करंट माइनस फील्ड करंट। तो ये हम लोग V, तो हमें V दिया हुआ है, देखो V 240 वोल्ट दिया हुआ है। तो V, सो इन द प्लेस ऑफ V वी विल गिव कीप 240 वोल्ट। okay, and in place of field current we can calculate the field current. So 240 volt is the voltage and 120 ohm is the field resistance, so 2 ampere is the field current. ठीक है। So this is 2 ampere. So like this we can calculate the armature current, which is line current minus field current. Okay। हाँ। अच्छा, तो ये देखो इसमें एक बात याद रखना कि जो 16 है ना, ये 16 किलो वॉट है। ठीक है। मैंने इसको यहाँ पे ऐसे 16 लिखा है, पर ये किलो वॉट है। तो ये जो करंट है ना, इसमें इंटू 10 पावर 3 का फैक्टर है। ठीक है। हाँ, तो उससे तो तुम सब्ट्रैक्ट, यू विल बी एबल टू सब्ट्रैक्ट देन। ओके। तो ऐसा, तो यू कैन कैलकुलेट दिस। ओके। तो इस तरह से हमें आर्मेचर करंट, हाँ, हाँ, 64.31 आएगा, वेरी गुड। और उसमें से अगर फील्ड करंट 2 निकाल दोगे तो आर्मेचर करंट देखो यही आएगा, 62.31। देखो। ठीक है, ऐसा आएगा। तो ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग को, क्योंकि अब हम लोग तो ये भी करना कोशिश कर रहे थे, बैक ईएमएफ निकालने का कोशिश कर रहे थे। तो बैक ईएमएफ कैसे निकालने का कोशिश कर रहे थे? हम लोग कोशिश कर रहे थे उसको EB इंटू IA इज इक्वल टू बेसिकली मैकेनिकल पावर डेवलप्ड, और मैकेनिकल पावर डेवलप्ड इज नथिंग बट EB इंटू IA इज इक्वल टू शाफ्ट पावर प्लस मैकेनिकल लॉसेस। ठीक है, कांस्टेंट नहीं, मैकेनिकल लॉसेस। ठीक है, लाइक दिस। तो अब हमें क्या मिला था? अब ये कांस्टेंट लॉस जो मिला था हमें, कांस्टेंट लॉसेस तो मिल चुका है। ठीक है। पर ये बात याद रखना कि ये कांस्टेंट लॉसेस में क्या है, ये कांस्टेंट लॉसेस में है, क्या कहते हैं, फील्ड करंट का लॉस भी है इसमें। ठीक है, फील्ड वाइंडिंग का लॉस भी है। तो देखो,
फील्ड वाइंडिंग का कॉपर लॉस भी है इसमें। तो ये तो एग्जैक्टली मैकेनिकल पावर का मैकेनिकल लॉस तो नहीं है ना, क्योंकि इसमें कॉपर लॉस है। तो इसलिए हमें अगर एग्जैक्टली मैकेनिकल लॉस चाहिए, तो एग्जैक्टली मैकेनिकल लॉस इज इक्वल टू कांस्टेंट लॉस माइनस फील्ड कॉपर लॉस। ठीक है। हाँ, रोटेशनल लॉस और मैकेनिकल लॉस सेम है, ठीक है। तो ये है 1157.64 माइनस फील्ड कॉपर लॉस। तो हमें फील्ड कॉपर लॉस तो निकाल सकते हैं I² R करके। तो हमें 2 एम्पियर पता है, 2² इंटू आर रेजिस्टेंस भी पता है 120 ओम। तो इस तरह से करेंगे तो हमें ये आ जाएगा। ठीक है। तो ये अगर हम लोग करेंगे तो वी विल गेट समथिंग। सो दे हैव रिटन इट एज 677.64। ठीक है, तो ये 677.64 आएगा। ठीक है। तो अब हम लोग ईबी निकालने का कोशिश करते हैं। तो ईबी इंटू आई ए इज शाफ्ट पावर प्लस मैकेनिकल लॉस। देखो यहाँ पे शाफ्ट पावर प्लस मैकेनिकल लॉस इज ईबी इंटू आई है। ठीक है। तो ऐसे, तो इसीलिए अब हम लोग ये करेंगे। तो शाफ्ट पावर हमें दिया हुआ है। शाफ्ट पावर हमें कितना दिया हुआ है, 16 किलोवाट 82% पे। तो क्योंकि आउटपुट पावर है 16 किलोवाट, तो इसका 82% कंडीशन पे कितना हो जाएगा, 0.82 इंटू 16 किलोवाट। ठीक है। तो ये हो गया 0.82 इंटू 16 किलोवाट। और मैकेनिकल लॉसेस हमें यहाँ से मिला है 677 जितना भी है। हाँ। और ईबी क्या हो जाएगा, ईबी विल बी डिवाइडेड बाय आर्मेचर करंट। और आर्मेचर करंट भी हमने निकाल लिया था, देखो। हाँ, 62 पॉइंट। हाँ। यस। तो इस जगह पे हम लोग 62.313 डाल देंगे, तो इस तरह से हमें ईबी आ जाएगा इस कंडीशन के लिए। ठीक है। तो ईबी हमें इस कंडीशन के लिए आ गया। तो अभी हमें ईबी 1 मिल गया है और N1 इसका पता है। ठीक है। तो ईबी 1 पता, ईबी 1 हमें मिल गया अभी सब कुछ करने के बाद, और N1 इसका दिया हुआ है 900 आरपीएम। ठीक है। अब हमें ईबी 2 निकालना है ताकि हम लोग उसका N2 निकाल सकें। पर ईबी 2 निकालने के लिए हमें आर्मेचर रेजिस्टेंस चाहिए। तो आर्मेचर रेजिस्टेंस हम लोग कैसे करेंगे, आर्मेचर रेजिस्टेंस हम लोग इस कंडीशन से निकाल लेंगे। ठीक है, फर्स्ट, क्योंकि हमें फर्स्ट केस में हमें ईबी 1 पता है, वी पता है, आईए भी पता है, आरए नहीं पता है। तो इससे हमें आरए आ जाएगा फर्स्ट कंडीशन से, राइट। तो आरए विल बी नथिंग बट ई बी वी माइनस ईबी 1 बाई आई ए। तो यही आरए रहेगा सेकंड कंडीशन के लिए भी। ठीक है। सेकंड कंडीशन में तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है, बस स्ट्रेट फॉरवर्ड वी माइनस IA2 RA करना है। ठीक है। वी हमें पता है 240 वोल्ट, IA2 भी पता है 98 माइनस 2 96 एम्पियर। और आरए अभी हमने जस्ट निकाल लिया ये करके। ठीक है। हाँ, 96 एम्पियर है। तो इस तरह से हमें ईबी 2 ये आ जाएगा, ये ईबी 2 कुछ वैल्यू है 211.37 करके। ठीक है। तो अब हमारे पास दो ईबीज हैं। तो ई तो और यहाँ पे ये एक और एक ईबी 2 और N2 लिख देती हूँ। तो दिस इज, हाँ, ईबी 1 पता है, ईबी 2 पता है, N1 पता है, N2 निकाल सकते हैं। ठीक है। तो हमें एन हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो हमें देखो N2 ही पूछा है, एस्टिमेट द स्पीड इन आरपीएम। ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, बट ये इसमें बहुत कुछ हो गया, तो लाइक, तो इसमें सब तरह का नॉलेज यूज हुआ है, लाइक वॉट एवर हैज बिन डिस्कस्ड इन द डीसी मशीन, सब तरह की चीजें इसमें यूज हुई है ना। हमने ये पावर फ्लो भी यूज किया। ठीक है, हमने सब कुछ यूज किया, मतलब वी हैव यूज्ड मेनी थिंग्स। ओके। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। सो इफ यू अंडरस्टैंड। हम्म। हाँ। हाँ, इस इसमें ना, मतलब तुमको कोशिश करना है कि अच्छा, हम कैसे स्पीड निकाल सकते हैं। पहले बोला है कि स्पीड निकालना है, ठीक है। तो यू शुड थिंक कि अच्छा, स्पीड निकालने के लिए अगर हमें बैक ईएमएफ का रेशियो मिलेगा तो हम लोग स्पीड का रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है। तो अब बैक ईएमएफ कैसे निकालेंगे, तो बैक ईएमएफ का इक्वेशन लिख दो, ईबी 1 और ईबी 2 का। ठीक है। तो बोला अच्छा, ईबी 2 के लिए आरए चाहिए और ईबी 1 में तो आईए आरए दोनों नहीं पता है, तो ईबी 1 ऐसे निकालना मुश्किल है, तो ईबी 1 का और कैसे तरीके से निकाल सकते हैं। तो तुम देखो कि पावर के कंडीशंस दिए हुए हैं। ठीक है। पावर का जैसे ही कंडीशंस दिया हुआ है, समझ जाओ कि फिर ये यूज होगा, ईबी इंटू आई ए,
ये ईबी इंटू आई ए वाला पावर फ्लो, ईबी इंटू आई ए विल बी शाफ्ट पावर प्लस मैकेनिकल लॉस। इसको यूज करके ईबी निकलेगा, ठीक है, फिर तुरंत समझ जाओ कि ऐसे ईबी निकलेगा, ठीक है। हम्म। और आईए तो हमें पता है, आईए भी ऐसे सिंपली निकाल सकते हैं, आईएल माइनस फील्ड करंट। और आईएल क्या है हमें पता है, वी इंटू आईएल इज द इनपुट पावर। तो जैसे ही तुम समझ जाओ कि यहाँ पे पावर्स गिवन है, ठीक है, तो पावर गिवन है मतलब तुमको इनपुट पावर यूज कहीं कहीं पे यूज करना है वी इंटू आईएल, और कहीं पे तुमको ये ईबी इंटू आईए के कंडीशंस यूज करना है, उसको यूज करते करते तुम पहुंच जाओगे, ठीक है, आंसर यू विल बी एबल टू सॉल्व, ठीक है। तो इस तरह से करना है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी है, सब कुछ निकाल दिया है हमने। तो इसमें अब क्या करना है, बस एफिशिएंसी निकालना है, ठीक है। तो एफिशिएंसी हमें 98 एम्पियर वाले कंडीशन के लिए निकालना है। तो एफिशिएंसी क्या होता है, एफिशिएंसी इज व्हाट यू से, एफिशिएंसी इज आउटपुट इनपुट, ठीक है। और इज, हाँ, हाँ, तो क्योंकि ये मोटर है याद रखना, तो मोटर के लिए हमें हमारा जो आउटपुट जो है वो मैकेनिकल है, तो हम लोग इसको इनपुट के टर्म्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इनपुट इलेक्ट्रिकल है, ठीक है। तो ऐसे तुमने जो बताया वो एकदम करेक्ट है, इट इज करेक्ट फॉर जनरेटर, ठीक है, क्योंकि जनरेटर में जो इनपुट जो होता है वो हमारा होता है मैकेनिकल, तो उसको हम लोग आउटपुट से रिप्लेस करेंगे, पर क्योंकि यहाँ पे इनपुट जो है वो मतलब इलेक्ट्रिकल है पर आउटपुट मैकेनिकल है, तो हम लोग आउटपुट को ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। तो इनपुट कितना है, इनपुट पावर इज नथिंग बट वी इंटू आई एल, मोटर के लिए। तो वी हमें पता है 240 वोल्ट, आईएल पता है 98, तो इस तरह से 240 माइनस इंटू 98, ये हो गया हमारा इनपुट। अब लॉसेस क्या क्या है इसमें, इसमें जितने भी लॉसेस है सारे लॉसेस, ठीक है। तो माइनस व्हाट यू से योर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट रोटेशनल लॉस, देन आर व्हाट यू से योर, बिकॉज यू सी रोटेशन, हाँ, आई ए स्क्वायर आर ए, एंड देन माइनस फील्ड कॉपर लॉस, ठीक है। तो इस तरह से करने से हो जाएगा, ठीक है। तो हमें पहले वाले क्वेश्चन से हमें रोटेशनल लॉसेस भी पता है, रोटेशनल लॉसेस देखो कहाँ गिवन है, रोटेशनल लॉसेस है यहाँ, ठीक है, ये रोटेशनल लॉसेस पता है, ठीक है। फील्ड कॉपर लॉस पता है, ठीक है, और आर्मेचर कॉपर लॉस भी पता है, ठीक है। तो इस तरह से यूज करके वी कैन व्हाट यू से सॉल्व फॉर दिस, ओके। तो इस तरह से एफिशिएंसी हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। आर्मेचर कॉपर लॉस देखो ये जो था 90, मतलब ये जो था दिस थिंग इज फॉर बट व्हाट यू से 82% लोडिंग, नॉट फॉर 98 एम्पियर, ठीक है। बट 98 एम्पियर के लिए निकाल सकते हैं, दिस इज नथिंग बट आई ए की जगह क्या आ जाएगा, 96 स्क्वायर इंटू आर ए, ठीक है। आर ए इज हाउ मच, आर ए वी हैव फाउंड इन द प्रीवियस क्वेश्चन, तो आर ए हमने कितना निकाला था, आर ए 0.298 है, ठीक है, तो 0.298। तो इस तरह से करने से वी कैन सॉल्व फॉर दिस क्वेश्चन, ओके, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल था, मतलब पहले वाले क्वेश्चन जितना लेने था उससे तो बहुत सिंपल है ये, डायरेक्ट है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं। अब हमें नेक्स्ट पार्ट पे क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक 6 किलोवाट मशीन दिया है, ठीक है, ए डीसी शंट मोटर 200 वोल्ट, इट इज ड्रॉइंग 2 एम्पियर, ठीक है, फ्रॉम द सप्लाई at no load. Armature resistance is this much, field resistance is this much, and total brush drop is 2 volt. Estimate the full load efficiency. Okay. So how we will estimate the full load efficiency? So first of all, from no load condition, we will try to find out the what you say mechanical loss. Okay. तो हम, दिस इज बेसिकली स्विनबर्न्स टेस्ट, ठीक है, नो लोड पे। तो नो लोड पे कैसे करते हैं, तो यू विल सी कि दिस इज, सो दिस V इंटू आई एल एट नो लोड, ओके। तो 2 एम्पियर इज ड्रॉन फ्रॉम लोड लाइक दिस, ओके, so this is the thing. So this is 2 ampere, but this is no load. Okay, Swinburne. तो IL 0, अब इसमें से so this is IL 0. Now this V into IL 0 is the input. Okay, but at no load this input is equal to the losses. Okay, and what are the losses? So the losses are copper loss, of armature plus copper loss of field plus the mechanical or rotational losses. Okay, so rotational loss.
एंड प्लस बिकॉज इन्होंने यहाँ पे ब्रश ड्रॉप दिया है तो ब्रश लॉसेस, ठीक है। तो ये ऐसे है। तो हमें क्या करना है, हमें रोटेशनल लॉस निकालना है। तो रोटेशनल लॉस क्या हो जाएगा, V इंटू आई एल जीरो माइनस कॉपर लॉस ऑफ आर्मेचर। अब हमें पता है आई एल जीरो 2 एम्पियर है और फील्ड रेजिस्टेंस इज 400 ओम, सो दिस फील्ड करंट इज 0.5। तो हियर आर्मेचर करंट इज 1.5, ठीक है। तो कॉपर लॉस ऑफ आर्मेचर कितना हो जाएगा, 1.5 विच इज द आर्मेचर करंट, 1.5 स्क्वायर इंटू आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.75, ठीक है। माइनस कॉपर लॉस ऑफ फील्ड, फील्ड का कॉपर लॉस कितना है, यू कैन डू इट इधर वोल्टेज इनटू द फील्ड करंट। तो फील्ड करंट इज 0.5 और वोल्टेज इज 200, सो दिस इज 200 इंटू 0.5। ओके, देन द ब्रश लॉसेस, ठीक है। तो ब्रश लॉस कितना होता है, ब्रश लॉस इज नथिंग, नथिंग बट इक्वल टू, सो ब्रश लॉस इज इक्वल टू ब्रश ड्रॉप, ब्रश वोल्टेज ड्रॉप इनटू आर्मेचर करंट, ओके, याद रखना, ठीक है। तो दिस इज ब्रश लॉस। तो यहाँ पे क्योंकि ब्रश वोल्टेज ड्रॉप दिया है 2 वोल्ट और आर्मेचर करंट है 1.5, तो वो हो जाएगा हमारा ब्रश ड्रॉप, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये सारा जो सब कुछ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके वी विल गेट द रोटेशनल लॉस, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें फुल लोड एफिशिएंसी निकालना है, ठीक है। तो फुल लोड एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, तो लेट अस नाउ सी, ठीक है। अब दूसरे केस में, सो नाउ लेट अस सी नाउ। तो यहाँ पे क्या है कि दिस इज सो, लेट अस, बिकॉज नाउ फॉर कैलकुलेटिंग फुल लोड एफिशिएंसी, इफ वी हैड नोन आई देन वी वुड हैव नोन एवरीथिंग, आई मींस द लाइन करंट, ठीक है। तो अब दूसरे केस में ये है हमारा सिचुएशन, दिस इज स्टिल 0.5, ये है आई एल, ठीक है। अब हमें ये आई एल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है कि V इंटू आई एल इज द इनपुट पावर, ठीक है। तो 200 इंटू आई एल इज द इनपुट पावर। अब ये इनपुट पावर किसके इक्वल है, इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट प्लस ऑल द लॉसेस, ऑल लॉसेस, ठीक है। इनपुट इज नथिंग बट आउटपुट प्लस लॉस, राइट। तो वही किया है, ठीक है। तो अब सारे लॉसेस कहाँ है, अब देखो तुम यहाँ पे सोचोगे कि अच्छा यहाँ पे भी तो मुझे आउटपुट प्लस लॉस लिखना था, पर क्योंकि यहाँ पे नो लोड है तो नो लोड में क्या होता है कि आउटपुट जीरो है, ठीक है। तो इसलिए इनपुट जो था वो टोटली इक्वल टू लॉसेस था नो लोड में, ओके। यू कैन सी द प्रीवियस लेक्चर ऑफ स्विनबर्न्स टेस्ट, ठीक है। स्विनबर्न्स टेस्ट में मैंने डिस्कस किया कि क्यों वर्सेस जीरो है, ठीक है। तो इस तरह से, तो दिस इज इनपुट, सो इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट प्लस लॉस, ठीक है। अब हमारा ये क्या कहते हैं, इनपुट तो हमें पता नहीं, आईएल पता नहीं है, तो हम लोग बस V इंटू आई एल लिखते हैं, ठीक है। आउटपुट पता है हमें, मैंने बताया था कि यहाँ पे जो भी लिखा रहता है वो आउटपुट रहता है मोटर का। दिस इज 6000 प्लस लॉस, तो कौन कौन सा लॉस, कॉपर लॉस ऑफ आर्मेचर। तो आर्मेचर का कॉपर लॉस कैसे पता चलेगा, तो हमें तो आर्मेचर करंट पता लगाना पड़ेगा। आर्मेचर करंट कितना होगा, आई एल माइनस 0.5। अगर ये 0.5 है, ये आई एल है, तो आर्मेचर करंट यहाँ पे आई एल माइनस 0.5 होगा। तो इसीलिए ये हो गया आई एल माइनस 0.5 स्क्वायर इंटू व्हाट यू से योर, हाउ मच इज दिस, 0.75। जनरली क्या होता है, क्योंकि अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखो अपने सॉल्यूशंस में इन्होंने ना यहाँ पे 0.5 नेग्लेक्ट किया, क्योंकि आईएल बहुत बड़ा नंबर है। तो ताकि तुम लोग जल्दी कैलकुलेट कर सको, तो इसलिए इन्होंने 0.5 नेग्लेक्ट किया, ठीक है। बट एग्जैक्टली कैलकुलेट करने के लिए 0.5 इंक्लूड करना पड़ेगा, ओके, लाइक दिस। तो दिस इज द सिचुएशन नाउ। व्हाट अबाउट द फील्ड करंट लॉस, फील्ड करंट लॉस इज व्हाट, 0.5 स्क्वायर इंटू आर एफ, सो 0.5 स्क्वायर 400, ठीक है, प्लस द ब्रश ड्रॉप। अब ब्रश लॉस कितना है, ब्रश लॉस इज ब्रश वोल्टेज इनटू आर्मेचर करंट। तो ब्रश वोल्टेज इनटू आर्मेचर करंट इज आई एल माइनस 0.5, है ना। ये हो गया। अब क्या है, अब है, सो either you can do this or and you can also do it like this, you can do it in this way that, um okay,
No, no, let us do it like this only, okay? And this is the, what you say, we have written the this field one, armature, this, and now what is left is rotational loss, okay? तो rotational loss कहाँ है? तो rotational loss is here, okay? So ओके, एक्चुअली इन्होंने क्या किया, इन्होंने ना आर्मेचर करंट के लिए कैलकुलेट किया है, बट दे हैव मेड मेनी assumptions, okay? So I will not discuss their solution, okay? I'm discussing what I'm writing because they have made many assumptions in this equation, okay? So अब यहाँ पे क्या है, अब हमने रोटेशनल लॉस तो यहाँ से निकाल लिया था नो लोड कंडीशन से, तो ये रोटेशनल लॉस यू गेट, ओके? सो दिस इज द इक्वेशन कि जो इनपुट जो है, इट इज इक्वल टू आउटपुट प्लस ऑल द लॉसेस, ठीक है? तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे यू विल सी कि इफ यू डू दिस यू विल गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन आईएल, ओके? तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को माइनस बी प्लस और माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a करके सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है? तो उसको सॉल्व करके यू हैव टू टेक एन अप्रोप्रिएट वैल्यू ऑफ आईएल जो कि नेगेटिव नहीं है, ठीक है? कोई पॉजिटिव वैल्यू आएगा उसी वैल्यू को आईएल का लेना है, ठीक है? अब क्या है, अब हमें फुल लोड एफिशिएंसी निकालना है, तो फुल लोड एफिशिएंसी वी कैन डू इट, राइट? वंस वी नो आईएल वी नो व्हाट इज द, वी हैव कैलकुलेट व्हाट इज द, so this is not because here we have calculated everything, losses, output, input, right? So this becomes, so this becomes what? So full load efficiency is output by input, ठीक है? तो इनपुट तो हमने यहाँ पे निकाला ही था आउटपुट प्लस लॉस करके, तो वो भी डायरेक्टली डाल सकते हो या फिर आउटपुट प्लस लॉस करके भी लिख सकते हो, जैसे भी सही लगे, ठीक है? हाँ, तुम यहाँ पे बेसिकली क्योंकि इनपुट है ना, तो इनपुट में तुम क्या कर सकते हो, आउटपुट प्लस लॉस लिख सकते हो, ठीक है? आउटपुट क्योंकि डायरेक्टली ले लिया क्योंकि आउटपुट हमें 6000 दिया हुआ है डायरेक्टली, ठीक है? तो इसको भी डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। हाँ, मोटर का केस सही है, तो वो तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट लाइक दैट ऑल्सो, बट यहाँ पे आउटपुट तो डायरेक्टली नोन है 6000, ठीक है? So you can use that also, okay? If it is directly given for that condition, you can use that directly also, okay? अब जैसे यहाँ पे भी देखो 16 किलोवाट दिया हुआ था, बट 16 किलोवाट तो दिया हुआ था फुल लोड पे, अब हमें फुल लोड करंट पता नहीं है, तो इसलिए हमने ये किया था, ठीक है? फुल लोड करंट हमें उस कंडीशन में पता नहीं, क्योंकि हमें नहीं पता कि 98 एम्पियर फुल लोड करंट है कि नहीं है, ठीक है? तो ये हमें पता नहीं था, तो इसलिए हमने ये ऐसे किया। लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें, तो हमें पता है कि ये जो है इसका इसी इसी फुल लोड पे ही हम लोग कर रहे हैं, सब कुछ फुल लोड एफिशिएंसी कर रहे हैं, तो हमें पता है कि फुल लोड पे आउटपुट पावर इतना होता है, तो इसको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, ठीक है? ओके, नाउ वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये है एक ब्रेक टेस्ट का क्वेश्चन है, ओके? सो लेट मी डिस्कस दैट। ओके, तो ब्रेक टेस्ट में क्या होता है कि दिस इज योर मोटर, ओके? तो मोटर का जो शाफ्ट जो होता है ना, वो एक ऐसे एक पुली पे कनेक्टेड रहता है। हाँ, करेक्ट, कन्वेयर बेल्ट पे, ठीक है? और कन्वेयर बेल्ट में क्या होता है कि एक जगह पे ऐसे ये मास कनेक्टेड रहता है, सपोज करो वेट टू, और दूसरी जगह पे ऐसे एक वो एक होता है, उस मशीन मुझे याद नहीं आ रहा, मीटर होता है, ठीक है? वो भी ऐसे वेट दिखाता है, वो ऐसे कनेक्टेड रहता है, ठीक है? तो ये इस तरह हाँ, 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 हाँ। तो मैं ये एक्सपेरिमेंट हो सकता है कि मैं एक एक्स्ट्रा क्लास लूंगी 1 घंटे का, तो उसमें मैं एक्सप्लेन करूं, अभी नहीं कर रही क्योंकि आज का बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है, ठीक है? तो इसमें क्या होता है ना ब्रेक टेस्ट में, तो ब्रेक टेस्ट में क्या करते हैं कि ये ना वेट होता है केजीज में, ठीक है? तो केजीज में मास है, मास गिवन है, ठीक है? तो अगर हमें ये निकालना है कि इस पे कितना लोड कनेक्टेड है, ठीक है? तो लोड कनेक्टेड कितना होता है, तो आई विल टेल यू। तो इसमें बेसिकली होता है तुम्हारा लाइक दिस, सो फोर्स ऑन पुली इज इक्वल टू W1 माइनस W2 इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है? ये होता है फोर्स ऑन पुली, ठीक है? तो W1 देखो 20.2 kg है इस क्वेश्चन में,
W2 है 5.1 kg। हाँ, और एक्सेलरेशन हमें पता है 9.82 होता है, 9.81 या 82 होता है, जितना भी दिया होगा क्वेश्चन में, ठीक है, दिया होता है जनरली, पर नहीं दिया तो 9.81 लेना है, ठीक है। हमने पढ़ा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट, मास पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा फोर्स ऑन पुली आ जाएगा न्यूटन में, ठीक है, तो दिस वी विल गेट इन न्यूटन। दिस हैज टू बी इन केजीज, ओके, फॉर फॉर गेटिंग दिस इन न्यूटन, okay, because kg is the SI unit, okay. Now we get force on pulley. Now once we get the force on pulley, so what is torque on pulley? ठीक है, so torque is nothing but force into the क्या कहते radius of this pulley, है ना। तो फोर्स कितना है, फोर्स है हमारा इतना जो भी हमने निकाला यहाँ पे, सो 20.2 माइनस 5.19, और रेडियस कितना है, देखो इन्होंने दिया है कि 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 30 सेंटीमीटर को क्योंकि हमें सब कुछ एसआई यूनिट में निकालना है, तो एसआई यूनिट में मीटर होता है, ठीक है, सेंटीमीटर नहीं होता है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे इसको, तो दिस इज डायमीटर, ठीक है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 30/2 15 सेंटीमीटर है, तो उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 15/100, ठीक है। तो ये टॉर्क आ जाएगा, और ये टॉर्क क्या है, ये है शाफ्ट टॉर्क, क्योंकि यही तो डायरेक्टली शाफ्ट पे एक्ट हो रहा है, समझ रहे हो, यही तो हम लोग इसको लोडिंग दे रहे हैं। तो लोडिंग हम लोग कभी भी डीसी, जब हम लोग शंट या सीरीज, अब वो तुम लोग याद रख करोगे इन द लैब ऑल्सो, व्हेन यू आर स्टार्टिंग द सीरीज मोटर ना, यू विल बी लोडिंग इट लाइक कन्वेयर, यूजिंग कन्वेयर बेल्ट। यू विल नेवर स्टार्ट अ सीरीज मोटर विदाउट अ कन्वेयर बेल्ट, ओके। तो ये जो लोड जो हम लोग देते हैं ना, ये शाफ्ट शाफ्ट टॉर्क दे रहे हैं, ठीक है। तो ये टॉर्क कैसे निकाला हमने, हमने क्या पहले फोर्स निकाला, और फोर्स इंटू रेडियस ऑफ पुली करने से हमें टॉर्क आ गया, ठीक है। तो इस तरह से ये जो टॉर्क जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ये शाफ्ट टॉर्क होता है। यही क्वेश्चन में पूछा था निकालने के लिए, ठीक है, कैसे निकालते हैं, ओके। नाउ वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव टू कैलकुलेट द शाफ्ट पावर। नाउ वी नो व्हाट इज पावर, पावर इज टॉर्क इनटू ओमेगा इन रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो हमें एन दिया हुआ है, एन इन आरपीएम इज गिवन एज 900 आरपीएम, ठीक है। तो ओमेगा रेडियन पर सेकंड में कितना होता है, दिस इज 2πn/60, ओके। तो दिस इज लाइक दिस, तो दिस इज, सो दिस बिकम्स 2πn/60, ठीक है। तो शाफ्ट पावर इज नथिंग बट शाफ्ट टॉर्क इनटू 2πn/60, ठीक है। तो ये पहले क्वेश्चन में हमने शाफ्ट टॉर्क निकाला है, तो इस क्वेश्चन का शाफ्ट शाफ्ट टॉर्क हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है, तो इस समय शाफ्ट पावर आ जाएगा, ओके। ये समझ में आया, अभी तक जो भी डिस्कस किया समझ में आ रहा है, वॉट एवर आई एम डिस्कसिंग, इज इट क्लियर, okay, so if there is doubts then you must ask, ठीक है, then you must ask this, I will discuss this break test in more detail, okay. Maybe in one extra class I am taking next week Sunday, so in that 1 hour class, say from 6 p.m. I am taking, okay, so 6 p.m. to 7 p.m., 1 hour only, so I'll discuss there some of the things which are like left, like suppose this break test, and there are one two three things more which are left, okay, so I'll discuss those things quickly, their theory, okay, so like that. सो ये है शाफ्ट पावर, तो शाफ्ट पावर हम लोग ऐसे निकालेंगे। नाउ वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ दिस। सो वी नो एफिशिएंसी इज व्हाट, एफिशिएंसी इज शाफ्ट पावर बाय इनपुट पावर ऑफ मोटर। तो हमने शाफ्ट पावर तो निकाल लिया पिछले क्वेश्चन में, ठीक है। और इनपुट क्या होता है मोटर का, इनपुट मोटर का हमें पता है V इंटू आई एल होता है। तो देखो V भी दिया हुआ है, IL भी दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से V इंटू आई एल कर देंगे, और शाफ्ट पावर हमें प्रीवियस क्वेश्चन से मिल जाएगा, ठीक है। तो प्रीवियस क्वेश्चन से शाफ्ट पावर कितना था, 2094, ठीक है। तो 2094.15, हाँ, डिवाइडेड बाई V इंटू आई एल, तो इसे हमें एफिशिएंसी मिल जाएगा, ठीक है। परसेंटेज में पूछा है तो इंटू 100 करना है फिर, ठीक है। तो ऐसे आ जाएगा, ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी था, ठीक है, these three questions. Now we go to the next question. Now in the next question,
This is the same question exactly as this question. Okay, same thing, same question, nothing is different except the numbers. ठीक है, सब exactly same है. तो इस क्वेश्चन में भी क्या करना है हमें, हमें नो लोड पे चीजें दी हुई है और हमें एफिशिएंसी निकालना है फुल लोड पे और रेटेड एफिशिएंसी. ठीक है, तो हमें नो लोड से हम लोग, नो लोड कंडीशन से हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, हम लोग नो लोड कंडीशन से वी विल फाइंड आउट द रोटेशनल लॉसेस. ओके, तो वी नो दैट इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट प्लस लॉस. ठीक है, अब नो लोड में क्या होता है, इनपुट एट नो लोड, तो आउटपुट एट नो लोड बिकम्स जीरो. ठीक है, सो दिस इज जीरो प्लस लॉस. ठीक है, तो ये लॉसेस की इक्वली होता है. तो इनपुट हमारा कितना है नो लोड पे, दिस इज 120 वोल्ट एंड इट टेक्स 1.5 एम्पियर. दिस इज 240. ठीक है, तो इनपुट है 120 इंटू 1.5. ठीक है, दिस इज द लाइन करंट IL0. ठीक है, तो V इंटू IL0 इज इनपुट, तो यही दिस इज इक्वल टू टोटल लॉस. ठीक है, अब टोटल लॉस में से अगर हम लोग सारी चीजें निकाल दें, तो टोटल लॉस में से इफ वी सब्ट्रैक्ट द कॉपर लॉस, ठीक है, देन वी सब्ट्रैक्ट द फील्ड करंट लॉस. ठीक है, फील्ड लॉस VF IF और IF स्क्वायर RF. ठीक है, देन व्हाट वी आर लेफ्ट इज वी आर लेफ्ट विद द मैकेनिकल लॉस. ठीक है, हाँ, रोटेशनल है मैकेनिकल लॉस, तो इस तरह से हमें मैकेनिकल लॉस मिल जाएगा. ठीक है, एक बार मैकेनिकल लॉस मिल गया, अब मैं येलो का तरीका डिस्कस करती हूँ. ठीक है, येलो का तरीका अगर तुम लोग को फास्ट करना है, और मतलब थोड़ा, क्योंकि वो लोग रेंज देते हैं ना न्यूमेरिकल्स में, तो उस रेंज में वैल्यू आएगा पर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा. ठीक है, तो मैं इन लोग का तरीका बताती हूँ. ये लोग क्या कर रहे हैं ना, ये लोग बोल रहे हैं कि अच्छा, ये जो V इंटू IL है, ठीक है, in this V into IL, in this basically they are neglecting, what you say, neglecting field current. Okay, they neglect field current for doing this. Okay, so V into IL we know is the input which is equal to output plus losses during load. Okay, तो ड्यूरिंग लोड में तो आउटपुट जीरो तो नहीं होगा, और फुल लोड में आउटपुट इज इक्वल टू 5 किलो वॉट, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में. ठीक है, तो V इंटू IL. अब हमें पता है कि DC शंट मोटर का आर्मेचर करंट कितना होता है, आर्मेचर करंट इज नथिंग बट IL माइनस फील्ड करंट. अब ये फील्ड करंट को नेग्लेक्ट कर दिया, तो ये IA और IL तो सेम ही है. ठीक है, तो लेट अस सपोज कि ये मैं IL की जगह IA लिख रही हूँ. ठीक है, ये इनका सॉल्यूशन है. ठीक है, ये इनका सॉल्यूशन है जिसमें लोग फील्ड करंट नेग्लेक्ट करते हैं ताकि कैलकुलेट करने में और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने में आसानी हो. ठीक है, अब आउटपुट प्लस लॉसेस, अब आउटपुट क्या है, 5000 है. अब फील्ड करंट का तो लॉस नहीं हम लोग इंक्लूड करेंगे, तो हम लोग कौन सा लॉस इंक्लूड करेंगे, IA स्क्वायर RA लॉस और मैकेनिकल लॉस. हाँ, तो इससे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा IA में. मैकेनिकल लॉस तो हम लोग ने नो लोड कंडीशन से फाइंड आउट किया, स्विनबर्न्स टेस्ट से. Okay, we have found the mechanical loss using Swinburne's test. So by mechanical loss value we have to put here also. Okay, so here RA is known, V is known, only unknown is IA, and then you get a quadratic equation in IA. Okay, so you will solve it by using minus B plus minus root B square minus 4AC. So you will get two values. So you have to take the value which is what to say, a bit higher value. Okay, so how you will see is, हाँ, पॉजिटिव होना चाहिए. और एक ये 5000/120, जैसे सपोज करो 5 किलो वॉट है और दिस इज 120, तो ये 5000/120 के रेशियो के आसपास होना चाहिए. ठीक है, ये भी क्रॉस चेक करने का तरीका. सपोज करो तुमको 5 एम्पियर आया, वो तो पॉजिटिव है, और एक आंसर आया सपोज 47 पॉइंट समथिंग, तो तुम कौन सा चूज करोगे, तुम 47 पॉइंट समथिंग चूज करोगे, 5 नहीं चूज करोगे. ठीक है, ओके, so like this. So what is the full load efficiency? Full load efficiency is output by इनपुट. और क्योंकि हमें पता है कि फुल लोड का ही पावर गिवन है, तो 5 किलो वॉट में हम डायरेक्टली आउटपुट पावर लिख सकते हैं, और इनपुट में हम लोग इनपुट तो निकाल ही सकते हैं V इंटू IA करके. ठीक है, V इंटू आई बेसिकली V इंटू IL करके. तो IL इज नथिंग बट, अब यहाँ पे फील्ड करंट ले सकते हो. ठीक है, एफिशिएंसी निकालते टाइम, पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ताकि जल्दी सॉल्व हो सके यहाँ पे फील्ड करंट नेग्लेक्ट करना है. ठीक है,
Okay. Now we go to the next question. Now in this next question, this is a very simple question, okay? A 220 volt DC shunt motor has armature resistance 0.6 ohm, field resistance 220 ohm. It takes 4 ampere from the supply at no load. At full load, the motor takes 29 ampere from the supply. Estimate the full load output. ठीक है? तो हम लोग कैसे निकालेंगे इसको? तो we can do it like this. So motor output is equal to motor input minus losses. इजी. तो हमें आउटपुट ही निकालना है, तो इनपुट कितना है? 29 एम्पियर. 220 इंटू 29 इज द बी इंटू आई एल. ठीक है. अब इसमें से सारे लॉसेस निकाल देना है, जितने भी लॉसेस है सारे. ठीक है, तो सारे लॉसेस कैसे निकालेंगे? तो इन्होंने मैग्नेटिक और मैकेनिकल लॉस दिया है क्या? एक मिनट. ओके, इन्होंने नो लोड कंडीशन दिया है. ठीक है, तो नो लोड कंडीशन से हम लोग रोटेशनल लॉसेस निकाल लेंगे. ठीक है, तो दिस इज स्विनबर्न्स टेस्ट. तो नो लोड में बेसिकली क्या होता है? V इंटू आई एल जीरो इज इक्वल टू लॉसेस, क्योंकि यहाँ पे आउटपुट तो जीरो होता है. इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट प्लस लॉसेस, लेकिन आउटपुट जीरो होता है नो लोड में. ठीक है, और V इंटू आई एल जीरो माइनस आर आई ए जीरो स्क्वायर आर ए माइनस फील्ड करंट स्क्वायर आर एफ इज इक्वल टू मैकेनिकल लॉस. ठीक है, तो V कितना है? 220 वोल्ट है. आई एल जीरो कितना था? 4 एम्पियर एट नो लोड. ठीक है, तो 4 एम्पियर एट नो लोड माइनस आई ए स्क्वायर. अब हमें पता है मतलब ये आई ए जीरो इज व्हाट? आई ए जीरो इज आई एल जीरो माइनस आई एफ जीरो. और आई एल जीरो इज 4 एम्पियर और आई एफ जीरो कितना है? 1 एम्पियर. ठीक है, सो दिस इज 3 एम्पियर. 3 स्क्वायर. 220 फील्ड रेजिस्टेंस है और 220 वोल्ट है, तो V बाई आर एफ विल गिव मी आई एफ, है ना? ऐसे. ठीक है, तो इस तरह से 1 एम्पियर, तो 3 स्क्वायर इंटू आर एफ. नाउ व्हाट इज आर एफ? 220 ओम. ठीक है, नॉट आर एफ, सॉरी, दिस इज आर ए, राइट? आर ए 0.6 माइनस आई एफ स्क्वायर. आई एफ स्क्वायर मैंने बताया 1 एम्पियर है. 1 स्क्वायर इंटू आर एफ. आर एफ इज 220. तो इस तरह से मैकेनिकल लॉसेस आ जाएगा नो लोड टेस्ट से. ठीक है, मैकेनिकल लॉसेस आ गया, तो अब यहाँ पे सारे लॉसेस में क्या है? यहाँ पे है आई ए स्क्वायर आर ए माइनस वी एफ आई एफ माइनस मैकेनिकल लॉसेस. इज इट नॉट? तो हमें नो लोड से मैकेनिकल लॉसेस मिल जाएगा, तो भाई मैकेनिकल लॉसेस को यहाँ पे पुट कर देना है. आई ए हमें पता है कितना है लोडिंग के टाइम पे. आई ए इज नथिंग बट 29, मतलब आई एल माइनस आई एफ. तो यहाँ पे भी 29 है और आई एफ यहाँ भी सेम है वी एफ बाई आर एफ. दिस इज इक्वल टू 1 एम्पियर. ओके, this is equal to 28 ampere. So this is 220 into 29 minus 28 square into RA minus VFIF. Okay, this minus mechanical loss. तो इस तरह से हमें आंसर आ जाएगा. ठीक है, this is an easy question. Okay, now let us go to the next question. Now in the next question we have to estimate the efficiency. तो हमें efficiency कैसे निकालना है? आउटपुट बाय इनपुट. तो पहले वाले क्वेश्चन में हमने आउटपुट निकाला इनपुट माइनस लॉसेस करके. यू सी, तो यही आउटपुट डाल देना है यहाँ पे और डिवाइडेड बाय इनपुट. इनपुट तो हमें पता है कि क्या है? V इंटू आई एल, है ना? तो इस तरह से इंटू 100 कर देने से एफिशिएंसी आ जाएगा परसेंटेज में. ओके, और फिर ये लास्ट क्वेश्चन में क्या करना है? स्पीड रेगुलेशन निकालना है. ठीक है, तो स्पीड रेगुलेशन कैसे निकलेगा? स्पीड रेगुलेशन इज नथिंग बट फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड. ठीक है, नो लोड टू फुल लोड मतलब N1 माइनस N2 बाई N1 इंटू 100, जहाँ पे N1 जो है वो है हमारा नो लोड. ओके, नो लोड स्पीड. तो हमें पता है कि हमारा ईबी जो होता है इट इज प्रोपोर्शनल टू एन इंटू फाइव. ठीक है, और शंट मशीन में तो अगर जब तक रेजिस्टेंस चेंज नहीं करे तो फाइव कांस्टेंट होता है, तो इसलिए ईबी इज प्रोपोर्शनल टू एन. तो दिस कैन बी ऑल्सो रिटन एज ईबी माइनस ईबी टू बाई ईबी वन इंटू 100. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो भी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जाएगा जाएगा वो सब रेशियो में कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, तो ईबी वन हम लोग निकाल सकते हैं वी माइनस नो लोड के केस में आई ए जीरो आर ए
तो इस तरह से EB1 आ जाएगा, और दूसरे केस में EB2 में कितना आ जाएगा, V माइनस IA2R है। हम्म। तो इस तरह से इसका रेशियो लेके ऐसे EB1 माइनस EB2 बाई E1 लिखने से ये N1 माइनस N2 बाई N1 के इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। So we will meet again in the next week for 1 hour class. There are some things which I want to discuss. It is at 6 p.m. Okay, on Sunday it is at 6 p.m. ठीक है. So we will see some small things which are remaining for 1 hour. Okay. So that is it for this class. So if you do not have any doubts, you can leave the session. Actually मेरे यहाँ power cut हो गया है, तो what will happen is I will not be able to record it. Okay. So if you do not have any questions, you can leave. Okay. I'm stopping the class here today. Okay. Okay then. हाँ. Okay. Okay. Okay then. ठीक है. So I'm stopping the class here. So okay. Okay. Thank you. So I'm stopping the class here. Okay. Okay then. I'm stopping the class. ठीक है. You can leave. Okay. Okay. I am also leaving. Okay.